convince others who are yet to join to be our partners in the next half of the journey. Now, usually people ask when I talk to my friends that what is the significance of this Paryushan? You celebrate it for 8 days and then you forget everything. So my clarification to them is very simple, and I think you all would agree with me. It is like any other festival. In Diwali, at Diwali we use to clean our house, everything which is dirty. For the rest of the year, you are rest assured that you have been purified, right? Similarly, we are trying to purify our soul. We do every day, but this is 1 week wherein we try to concentrate, make sure that we are robust enough for the next 1 year to continue a spiritual journey. I remember Mr. Saraugi explained the importance of doing the logos, how it actually scientifically, neuroscientifically it works in our mind, what are the advantages and how you can achieve that, the upliftment of the soul when you do that logos. Similarly, today morning I was hearing to Samniji's and she was talking about different vandanas. I was also listening to another session in which Samniji spoke about the different type of tears. I couldn't imagine the logic, the science behind so many different types of tears will have such a great significance. And I could correlate every aspect of that with my own life. What can be more satisfying and convincing than this? I recall to one of the incidents which happened with me in front of my eyes in my family. My grandfather, he was 85. He had a paralysis attack once before. The second time he got a paralysis attack, he was admitted in the hospital. Doctors told us, we have tried our best. The best thing will be you take him home so that he spends last moment in peace with family. We had no option. We had absolutely no option. We got him back. And I still remember for hours together, my father used to sit next to his bed doing Bhaktamba Stotra. Believe me, he became absolutely all right in 3 months and he lived until the age of 93. Until the age of 92, he was self-sufficient. He was self-sufficient. This is the power of prayers. This is the power of Bhaktamba. I thought this might be one of the case. I know another similar incident where my father's very close Jain friend, in fact, these two friends together started one of the Jain Sangh in Ahmedabad. He was in the similar situation. He had a stroke. And in the hospital, the doctor said, we are trying our best, but it was again the same Bhaktamba Stotras, which my father used to narrate to him. His eyes were closed. I don't know whether he could listen to it or not. He became absolutely fine and he lived for more than 3 years after that normal life. So I think the sooner you reach to that level of understanding, that level of spirituality, it becomes much easier for us to understand the significance of these mantras and vandana and chanting the Bhaktambars and so on. During the process of Paryushan, one of the biggest things which we seek is forgiveness. And as I have heard many people say, once you say sorry or bhul ke chale gaye. So I always say, this sorry is not for you. I'm trying to apologize to you. That's perfectly all right. But more important for me is to clean myself. I did some mistake. I apologize to you. I said sorry. I am now clean. I will be more confident. I have cleaned my state. There is nothing in my heart for me to carry against you. So more than the other person, this forgiveness, this sorry is more important to us. Anyway,
getting along with the story of Jain Vishwa Bharati. So this year it is quite unique. We have got Jain Association of UK. Mamaji, Premji is there. Jivanji is there with us. They have been right from day one in every occasion, been our partners. We are extremely thankful to them. We have got Irish Jain Sangh. We have got Jain Ashram Birmingham. Arvinder ji has been. I think if there is a prize for a person whose participation level is highest, by default it will go to Arvinder ji Jain. Since morning until the last event, and it is not the participation, he gets into the depth of every aspect. He will ask so meticulously thought questions that it actually clicks us. We should also start thinking that deep. Apart from that, we have got JVB Sweden, Southeast Jain Association along with us participating. It's really a matter of immense pride and pleasure to have Paryushan with you all. Behind all this, we have got the team of volunteers who have been working. Believe me, I do see messages coming at 1 o'clock in the night. I see messages coming at 4 o'clock in the morning. It seems as if they have been working round the clock seamlessly. Or not only that, they are updating everything on the website on a real-time basis. 10 different activities and Gyanshala activities. I don't have any words to thank them, but I am really honored. JVB is really honored to have such a fantastic team of volunteers who have been available to our exposure. Next is the Gyanshala. As Samniji said, probably the children has definitely surpassed us. A Gyanshala with 60 young kids. And believe me, it is not only again the participation, but the depth of the knowledge. I have attended few quiz. I'll be very honest. In many cases, I don't know the answer, but the kids know the answer. What can be more satisfying than seeing the next generation taking over this immense knowledge? Sincere thanks to the parents. Sincere thanks to the Samnijis who has made this possible for us. Moving ahead, I know there are a lot of tapasyas going on. May I request all of you to kindly make sure that you register your names with us so that we can do the Bahuman at the end of the Paryushan. Tapasya has got its own importance in Jainism. So make sure that whether it is 1 day or 8 days or 16 days, irrespective of that, if there are forms available online on the website, you can fill them. Otherwise, you can let us know and we'll make sure that we enroll your names all together. Last but not the least, we also want everybody to be part of this journey with us. I know many people have donated. It is not the amount, but it is the participation. We will never have requested anybody so far to donate any particular amount. But all we want is, we want everybody to be together in the journey. Your participation, your togetherness will definitely take us to the new heights. At last, I'll just tell you a very small poem. Try to read and understand this with me. I think it has got a lot of value. And this is in Hindi, so probably if you don't understand, I can send you an English version. But best would be if I can speak it in Hindi for you. It goes like this. नहीं उपवास कर पाओ तो तुम उपहास से जरूर दूर रहना. उपवास न कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन उपहास से दूर रहना. अगर दर्शन न कर पाओ तो प्रदर्शन से दूर रहना. दर्शन न कर पाओ तो प्रदर्शन से दूर रहना. कमी वंदन में रह जाए तो बंधन से जरूर बचना. प्रवचन सुन न पाओ तो दुर्वचन से जरूर बचना. दुर्वचन से जरूर बचना. स्वाध्याय न हो संभव तो क्लेश से बचना. न भोजन छोड़ पाओ तो
अगर उपवास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, न भोजन छोड़ पाओ तो, पर हर रोज भजन जरूर करना। न मीठे बोल कह पाओ, केवल मौन ही रह जाना। कहे कोई अगर कड़वा वचन, तो हंसकर ही सह जाना। निभा न पाओ रिश्तों को तो उनको तोड़ मत देना। निभा न पाओ रिश्तों को तो उनको तोड़ मत देना। किसी का हाथ थाम के मझधार में छोड़ मत देना। न कर पाओ प्रतिक्रमण तो अतिक्रमण से बचना। क्षमा अगर न मांग सको तो क्षमा करके ही तिर जाना। क्षमा करके ही तिर जाना। क्षमा करके ही तिर जाना। ओम अरहं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई. Thanks a lot for that really inspiring and really personal stories that you mentioned. They're really touching and really inspiring for all of us, in fact. You're welcome. So moving on, can I just invite Himanshu bhai to come forward and very quickly give us the results of the Jain quiz, of the Parisian quiz that's running around. Sure, thanks शुभम. जय जिनेंद्र सभी को. और आज की क्विज yes no questions पे बेस्ड थी. So there were total of around 300 participants from all parts of India, UK. There was some participation from Canada and Sweden as well. Competition बहुत ही टफ था. लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं. जैसा राजेश जी ने बोला कि नेक्स्ट जनरेशन का नॉलेज लेवल काफी अच्छा है. So that is quite evident in the scores. So now, without wasting time, let me announce the winners. The third prize goes to Ayush Sanklecha ji. Second prize goes to Manju Kothari ji. And the first prize goes to Pinky Sanklecha ji. So congratulations to all the winners and keep quizzing. Om Arham. Over to you, Shubham ji. Thanks a lot, Himanshu bhai. And heartily congratulations to all the winners and equally to all the participants. We'd keep inviting you all to participate and give it a try. There are no negative marks in this quiz. That's an amazing quiz that the volunteers have built here and a lot of hard work that has gone in. Just give it a try. And if not the answers, come back with the feedback. We'll be open to everything. Okay, so moving on to the main program of this time, which is masterclass on purification. So can I invite respected Samni-ji to please come ahead and begin the class? We are already 20 minutes into the time. So Samni-ji, if you could factor that into your talk, that'll be really helpful. Thank you. गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना. आदरणीय निदेशिका जी और हमारा प्यारा धर्म परिवार. जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है. जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है. जहाँ गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है. मुझे दिखता नहीं नवकार से ऊंचा कोई यहाँ. वहाँ सब पाप कटते हैं जहाँ पे श्रद्धा होती है. वहाँ सब पाप कटते हैं जहाँ भावों की शुद्धि होती है. आज मेरा विषय कलर थेरेपी. किस प्रकार हम कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग हम अपनी चिकित्सा करें. मैं बात करूं कलर की. अपनी बात को शुरू करती हूं एक कहानी के माध्यम से. कीर्तिधर के नाम के मुनि थे और वो मुनि जैसे ही बहुत गहरे ज्ञानी थे और राजा के घर गोचरी गए. अब जैसे ही राजा के घर गोचरी गई और रानी मुनिश्री से पूछने लगी कि मेरे राजा युद्ध में गए हुए हैं और उस युद्ध में विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आप
मुझे बता सकते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है वो विजय होकर के आएंगे या हार करके आएंगे? मुनि ने कहा कि मुझे इस प्रकार बताना नहीं है। लेकिन रानी बहुत जिद पर आ गई और उसने राजा को कहा, मुनि को कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तो आपको यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। अब मुनि अवधि ज्ञानी थे, अतीन्द्रिय ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि रानी, राजा तो 100% विजयी होकर के ही आएंगे, विजयी होकर आएंगे। जैसे ये बात सुनी रानी ने, रानी बहुत मन में खुश हुई और राजा के आने का समय रानी तैयार हो गई माला लेकर के। और जैसे ही माला लेकर के गेट के सामने खड़ी है और राजा सामने देख रहा है, और राजा ने सोचा इसको क्या पता कि मैं विजयी होकर के आ रहा हूं, और ये माला हाथ में लेकर के खड़ी है तो 100% इसका कोई और चक्कर होगा। ये भावों से राजा के मन में शंका हो गई। जैसे ही राजा के मन में ये शंका हुई और राजा जैसे ही एंट्री करने लगा और रानी ने उसके लिए हार पहनाने को तैयार हुई, राजा क्रोधित हुआ और उसका मूड ऑफ हो गया। उसने कहा, रहने दे ये आडंबर, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुझे कैसे पता कि मैं विजयी होकर के आ रहा हूं? रानी ने जैसे ही अंदर आई राजा को शांत किया और सारी घटना बताई कि ये कीर्तिधर के नाम के जो मुनि हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। राजा ने सोचा कहीं ये झूठ छिपाने के लिए तो नहीं कर रही है। राजा गया कीर्तिधर के पास और सारी बात की जानकारी की। और जैसे ही बात की जानकारी की और राजा ने उस मुनि से पूछा कि मुनि जी, मुझे एक बार और बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरा आयुष्य कितना है? मुनि जी ने कहा, हमें ऐसी बातें बतानी नहीं होती हैं, लेकिन आपको पता है जब राजा का जमाना होता है और राजा ऑर्डर ही सब कुछ होता है तो व्यक्ति अपने प्राणों को बचाने के लिए जो भी करना पड़ता है वो कर लेता है। मुनि ने उस राजा को कहा, तेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा को बहुत खराब लगा। दूसरी बात पूछी कि राजा मुनिश्री, आप मुझे एक बात और बता दें कि मैं मर कर के कहां पर उत्पन्न होऊंगा? मुनिश्री ने कहा, साधु को ऐसा कुछ बताना नहीं होता है। राजा ने कहा, बताते हो कि नहीं बताते हो, नहीं तो मैं अभी दिखा देता हूं मेरा चमत्कार। बेचारा मुनि शांत स्वभावी था। उसने कहा कि राजा, मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप पूछ रहे हो, मुझे बताना पड़ रहा है। भगवान की आज्ञा में तो नहीं है, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है कि आप मर करके आपके घर के पास में एक नाली है और उस नाली में आप कीड़ा बनोगे। अब ये बात सुनी राजा को बहुत खराब लगा। घर पर आया, उदास होकर के बैठा। रानी ने पूछा, क्या बात है? उसने सारा का सारा घटनाक्रम बताया। अब जब किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि अब 7 ही दिन है तेरी उम्र के, तो अब वो क्या करेगा? अब वो अपने आप को देख रहा है और चिंतन कर रहा है। आयुष्य तो पहले बंद गया और भावपूर्ण चिंतन करते करते मन में आया कि मुनि की कोई बात सच होगी नहीं, लेकिन फिर भी कहा है तो अपने बेटे को बुलाया और सारा का सारा कार्यभार संभाला दिया। जैसे ही उसको सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी और ये साथ में कह दिया कि बेटा, ऐसा नहीं हो कि मैं मृत्यु हो जाऊं, 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर मैं मर करके उस नाली में कीड़ा बनूं तो एक काम करना, तू मुझे देखते ही खत्म कर देना। कहाँ मैं राजा का राज्य का ठाट बाट में रहा और कहाँ मुझे उस गंदगी नाले में कीड़ा बन के रहना पड़ेगा। बेटा तू एक काम कर देना, बस मुझे वहीं पर खत्म कर देना। अब जैसे ये बात सुनी और राजा के मन में, बेटे के मन में आया कि पिता कह रहा है तो करना ही पड़ेगा। उसने भी वचन दे दिया, ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करूंगा। अब जैसे ही 7 दिन होते हैं और राजा मर जाता है, राजा की मृत्यु के साथ में वो कीड़ा भी बन जाता है। यह बात सुनकर के अब प्रियंकर नाम का उसका बेटा, और उसके मन में आया कि मैं भी मुनि के पास जाऊं और मैं भी अपना भविष्य जानूं और मेरे पिताजी के बारे में रियलिटी जानूं कि ये सब ऐसा क्यों हुआ। वह गया मुनि कीर्तिधर के पास और पूछा तो बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जब उनका आयुष्य बंधा था तो उनके भावों में बहुत ज्यादा आसक्ति थी और बहुत ज्यादा क्रूरता थी, और यही कारण है कि उनके भावों की नेगेटिविटी के कारण उनका आयुष्य उस कीड़े के भाव में बंधा, क्योंकि वो घर पर बहुत ज्यादा आसक्त थे, पैसों में बहुत ज्यादा आसक्त थे, और उस आसक्ति के भावों के साथ उनका कर्म का बंधन हुआ और वो तिर्यंच गति का बंधन किया।
इस प्रियंकर ने पूछा कि राजा, यह आयुष्य कर्म किसके आधार पर बंधता है? तब मुनि जी ने कहा कि ये सब भावों का खेल है। जब व्यक्ति की भावधारा बदल जाती है और आयुष्य बंधन होता है, तो व्यक्ति का आयुष्य जिस भावधारा में, उत्तराध्ययन में कहा जाता है, जल लिस्सई उपई तल लिस्सई मरे, सॉरी, जल लिस्सई मरे तल लिस्सई उपई, यानी जिस लेशा में जीव मरता है उसी लेशा में उत्पन्न होता है। उसकी भावधारा गंदी थी, आसक्ति की थी, इसीलिए वो मर करके उस कीड़े के भौं में गया है। अब मुनि जी ने कहा, बस यही है लेश्या। ये लेश्या क्या है? ये भावधारा। बस भावधारा के आधार पर आप सब जानते हैं कि मरुदेवा माता ने कोई दीक्षा ग्रहण नहीं की, कहीं पर भी जाकर के विशिष्ट साधना, त्याग, तपस्या नहीं की, लेकिन भावों की इतनी विशुद्धि, दर्शन की इतनी तीव्र भावना, वंदना की इतनी उत्कृष्ट इच्छा कि उस हाथी के हौदे पर बैठे बैठे ही केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त हो गया। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कलर थेरेपी के आधार पर किस प्रकार हम अपनी आत्मा की चिकित्सा करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बनी है। और वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु। आकाश के आधार पर, ये 5 तत्वों के आधार पर हमारा ये बॉडी बनी है। और इस बॉडी में 2-2 तत्व मिलाते हैं तब हमारा शरीर चलता है 3 तत्वों से, वात, पित्त और कफ। ये भी कैसे बनते हैं? जब ईथर और एयर मिक्स होती हैं तब क्या बनता है? आपके वात बनती है। और जब फायर और वाटर मिलता है तब पित्त बनता है। और जब अर्थ और वाटर मिलता है तब कफ बनता है। ये शरीर की प्रकृति और इसके आधार पर शरीर का निर्माण होता है। हम आज समझेंगे सबसे पहले लेश्या की बात। कहा जाता है, कृष्णादि द्रव्य साचिव्यात परिणामो य आत्मन स्फटिक सेव तत्रायम लेश्या शब्द प्रयुज्यते। भगवान ने कहा है कि लेश्या का अर्थ होता है कि जिस प्रकार आपके बाह्य वर्गनाएं, पुद्गल वर्गनाएं आपके शरीर के चारों ओर होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी आत्मा के भाव बन जाते हैं। भगवान महावीर ने हमें 4 सूत्र दिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यानी जैसा जैसा क्षेत्र होता है वैसा वैसा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। आपको दिखाई दे रही है सामने स्फटिक की माला। स्फटिक की माला में जिस प्रकार का आप धागा डालते हैं उसी प्रकार के, उसी कलर में वो दिखने लग जाती हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा है, वो स्फटिक की तरह एकदम प्योर है, लेकिन जैसे ही वह पुद्गल के परिणामों में आती हैं और उसके वैसे वैसे परिणाम होने लग जाते हैं। तो हम आज समझेंगे कि किस प्रकार हमारी आत्मा इस बाह्य पुद्गलों से परिवृत होती हैं और कर्म बंधन करती हैं। सबसे पहला जो हमारा बीच का भाग है, ये जीव का भाग, और ये जीव अपने आप में प्योर होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कर्म नहीं लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि जीव आत्मा को कर्म बंधन होता है। बंधुओं, आत्मा तो अपने आप में शुद्ध होती है, वो तो कर्म मुक्त होती है, लेकिन ये संसारी जीव होता है, उसके ये कार्मन शरीर के आधार पर वह आत्मा अशुद्ध हो जाती है। और इसके बाहर जो तीसरा घेरा है, यह है हमारा अध्यवसाय, यानी भाव। आपके कैसे भाव हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी तेजस बॉडी बनती है, और उस तेजस बॉडी के अकॉर्डिंग ही आपकी लेश्या होती है, और यही लेश्या के आधार पर आपका ओरा बनता है, और ये ओरा के आधार पर आपके एंडोक्राइन सिस्टम और इमोशनल का भी विकास होता है। आपके जैसे जैसे इमोशंस होंगे, आपके कर्म बंधन भी वैसे ही होंगे। तो हम स्वयं चिंतन करें कि हम संसार में रहते हैं, लेकिन हमें रहना कैसे है? समुद्र में जिस प्रकार कीचड़ में कमल रहता है, उसी प्रकार हमें भी इस परिवार और समाज के बीच रहना है। कहा जाता है, मूल स्रोत है धर्म का, आत्मा की पहचान, एके साधे सब सधे यही परम विज्ञान। यानी जो अपनी आत्मा को साध लेता है, उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, न मंदिर जाने की जरूरत, न मस्जिद जाने की जरूरत, बस उसको तो अपने आत्मा रूपी घर में जाने की जरूरत है। और कहा भी गया है कि ना मैं मंदिर गया, न मैं मस्जिद गया, मैं तो अपने भीतर आत्मा में गया और वहीं पर तीर गया। तो हमें भी आत्मा में रमण करना है और तीरने की बात कहनी है। जो कलर है, उस कलर के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि लेश्या एक दर्पण है, और उसमें व्यक्ति
को जिस प्रकार दर्पण अपना प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही जैसे व्यक्ति के भाव होते हैं उसके आधार पर ही उसके परिणाम होते हैं। जो हमारी लेस्या 6 होती हैं वो उसमें से हम 2 भाग करते हैं, एक है गुड और एक है बैड, यानी ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस। इसकी बात मैंने पहले भी की थी, लेकिन अभी मैं रिवीजन नहीं करूंगी। अभी तो मैं बात करूंगी कि कलर किस प्रकार, नेगेटिव कलर्स आपके मन पर प्रभाव डालते हैं। जो कलर होते हैं रेड और येलो कलर, ये दोनों कलर हीट पैदा करता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में शक्ति बढ़ाता है, एनर्जेटिक होते हैं। और जब पॉजिटिव कलर्स को हम ध्यान में करते हैं तो क्या होता है, हमारे भीतर एनर्जी क्रिएट होती है, हमारे भीतर एक सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। और हमारी जो डिजायर्स हैं वो भी इस रेड कलर के कारण होती हैं। लेकिन कौन सी डिजायर्स? पॉजिटिव डिजायर्स जो आपको अपने डेस्टिनेशन तक ले जाए, वो डिजायर्स। अब यही जब धुंधला कलर का आप ध्यान करते हो तो वो आपके भीतर में एंगर भी बढ़ाएगा, आपके भीतर में घृणा भी बढ़ाएगा, आपके भीतर में पेशेंस का भी धीरे धीरे विकास कम कर सकता है, और असंतुलन का भी विकास होता है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगी क्योंकि आप सब जानते हो, आप कलर की दुनिया में रहते हो। और कहा भी है, दुनिया है रंग बिरंगी रे भाई, कहीं पर्वत हिमगिरी सी ऊंचाई। तो ये दुनिया रंग बिरंगी है, और इस रंग बिरंगी दुनिया में रहते हुए हमें अपनी आत्मा में रहना है। और वो आत्मा में पहुंचने का दूसरा कलर है नीला कलर। अगर आप नीला एकदम चमकता हुआ कलर यूज करते हैं तो आपके भीतर में साम्यता का, यानी न्यूट्रल भाव का विकास होगा, आपके भीतर में पीसफुल भावों का विकास होगा, आपके भीतर में ट्रुथ के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपके भीतर में गंभीरता का विकास होगा। जो टेलीपैथी आपने देखा होगा, आजकल रेकी का प्रयोग करते हैं, रेकी के साथ में टेलीपैथी का भी प्रयोग करते हैं, कलर थेरेपी भी यूज करते हैं। तो ये जो नीला कलर है वो हमारा इंट्यूशन पावर भी बढ़ाता है, हमारे भीतर में एक अलग ही प्रकार की एनर्जी भी क्रिएट करता है, जिससे कि हम बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित रहें। जब व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी आती है तो उसको स्पेशल नीले रंग के ध्यान के साथ सजेशन दिलाते हैं कि आप चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। जिस बॉडी का पार्ट वीक हो रहा है उसको नीले रंग का ध्यान कराएं, तो तुरंत वो आपकी बॉडी में जो भी इम्बैलेंस जैसी स्थिति होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे आपकी बॉडी अगर बहुत ज्यादा निरुत्साही हो जाती है, यानी क्रिएटिविटी नहीं रहती है, तब हम चमकते हुए सूरज के कलर का ध्यान करवाते हैं। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगी। जब व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तब भी उसको क्या करते हैं, नीले रंग का ध्यान करवाते हैं, और नीले रंग के ओम के उच्चारण के साथ वो अपनी बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर लेता है। उदासी, भागदौड़, चिंता, भय, विस्मृति, अति संवेदना, ये सब नेगेटिव इफेक्ट होता है जब आप डल ध्यान करते हो, डल कलर में, यानी बहुत ज्यादा एकदम लाइट ब्लू कलर करते हो, तब ऐसा इफेक्ट होता है। शायद मेरा समय संपन्न हो गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूं, क्योंकि आगे हमारी वापस भक्ति है, और मुझे लगता है लंदन वासियों को भक्ति बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई भक्ति करने वाला आ जाता है तो इनको खाना पीना सोना सब कुछ उड़ जाता है। और हमने देखा कल भी सोनम और हेमा की भक्ति थी, रात को भी काफी लेट तक चली, लेकिन काफी लोग बड़ी संख्या में बैठे रहे। और आज तो हमारे सागर भाई की भक्ति है, और सागर भाई लंदन का प्यारा सिंगर है और सबके दिलों पे इसका राज है। तो हम चाहते हैं कि हम सागर भाई की इस भक्ति में ज्यादा बाधक नहीं बने। हालांकि ये विषय आपके इंटरेस्ट का है और आप सभी चाहते हैं कि मेरी हर समस्या का समाधान हो। हम कलर के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बता सकते हैं, उसका नेचर भी बता सकते हैं कि कैसा कलर पसंद हो तो कैसा उसको उसका व्यक्तित्व होता है। लेकिन ये क्लास अभी नहीं, और कभी करेंगे। फुर्सत हो तो आना जेवीबी में गेस्ट बन के। अब हमारी आपसे यही है रिक्वेस्ट, और आप इस कलर थेरेपी के बनिए गेस्ट और पाए अपनी आत्मशुद्धि का एवरेस्ट। यही है हमारी आपसे रिक्वेस्ट। और आइए सागर भाई से, और आगे की हम बागडोर पुनः थामते हैं हमारे शुभम भाई के हाथ। तो आइए, शुभम भाई बहुत एक्टिव है हर कार्य में, तो इस कार्यक्रम की भी बागडोर पुनः हम आपको थाम रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडीड आपका लेक्चर बहुत ही कैप्टिवेटिंग था, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी मुझे इंटरप्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था। एंड कृतज्ञ अस्मि. Thanks a lot for that wonderful lecture. Moving on, and before we move on to Sagar Bhai's special program today, could I please have a special speaker, a very brief speech before we move on to that. So we are extremely pleased to have Jain Association UK as the donor for all the Paryushan events today at JVB London. Thanks a lot for that. And at the same time, we are extremely pleased to have their president, Premji Jain, to speak and share with us his kind thoughts. So could I please request Premji Jain, sir, to please come forward, unmute yourself, and share your kind thoughts with us. Thank you, sir. Hello. Yes, we can hear you. Thank you, Shubhamji, for introducing me. As you said, my name is Prem Jain. I'm the current president of Jain Association of UK. Respected Shramni ji, Pratibha Pragya ji, Dr. Pratibha Pragya ji, and Savan Pragya ji, Vandame Namaswamy. And Jain Association was formed, and it is now 44 years old. Jain Association was one of the very few Jain organizations in London, and I'm very glad to say we are still there, and our members are always supporting thoroughly and giving generously whenever the money is required. Our association has a very founder member, was one of the founder members were Mrs. Pushpa Kalaria Jain. Unfortunately and very sadly, she passed away last week. She was a very energetic lady and always supported the association and all the religious programs. She was very religious herself, very strong-minded, but it's sad she is no longer with us. So we pray to Arihant Bhagwan to give her soul peaceful rest. Now, Shramni ji has always supported Jain Association for many, many years, as long as I can remember. And Jain Association has always supported Shramni ji. Shramni ji has found time whenever she was doing her PhD and all the other higher education studies. She has never, for once, has said she has no time to attend one of our monthly meetings we used to have. So we have great respect for her. And now we are on this Viman. And our pilot is Shramni ji. So we are all in safe hands. So I like to say to Rajesh Jain ji, so there's no question of giving up your hand. So we are all together and we will support you wherever we can. We support Shramni ji. We always have supported Shramni ji. So even this time, we are with you. Our association is with you as well. So it's a great pleasure to be speaking on behalf of Jain Association today. Rajesh ji, Jai Jinendra. जय जिनेंद्र सर, आपका सानिध्य बना रहे, आपका सानिध्य बना रहे, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है। एक बड़ा ऑनर आपने हमको दे दिया, मामा जी बना दिया हमको। आपके पूरे संघ के मामा जी हैं सर आप तो। Thank you very much. You're more than welcome. So
The other thing, Pratibha Pragya ji has a great sense of direction. Ever since I've known her, she knew where she wanted to go. And with that direction in mind, then she had the dedication as well. Always dedicated. Whatever Pratibha ji has done, she was shown so much dedication. And with that dedication, her determination was there. So with these 3 Ds, शरमनी जी आपने झंडा JVB के ऊपर लगा दिया ऐसे करके, आश्रम बना दिया। ठीक है ना राजेश जी? बिल्कुल सही। तो वो झंडा अभी लगा रहेगा, बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा। And we have the center established by the name of Jain World Peace Center, which is a very big achievement in itself, having a Jain World Peace Center in London, which has taken long time, but it is there now. So with the hard work of the trustees and with the cooperation of other organizations, Jain organizations, no doubt it will move forward. So Shramani ji is a very respected individual in all organizations, whether it's a Jain association, so many organizations have shown so much respect for her. And we admire her enthusiasm in everything she has done. She's a very enthusiastic person, getting up very early in the morning, we have seen in recent days, and staying late until 10 o'clock, 11 o'clock. You know, it can only be done if you have enthusiasm about your cause. So the cause is there and she is always willing to help us. And in return, we appreciate her enthusiasm. And with all these 3 things, the next thing to add is love. She loves everything she does. And we love her spiritually as well. Jain Association members have always great respect for her. Whenever we had our monthly meetings, it was attended by so many of our members. So nowadays, because of this current epidemic, we are unable to have our meetings at the Jain Vishwa Bharati. So no doubt, as soon as it comes to an end, once a month, we will have the pleasure of seeing her face to face. Her personality is so good, her aura is so good, you know. So we say to ourselves, we are very fortunate to have such a energetic person among us. So I won't say too much because Sagar Bhai is waiting as well. So with that, we wish her, on behalf of all our members, a very good health and happiness. Om Arham. Thanks a lot, Prem Bhai. Thanks.